July. My name is Tanzili Wang. I'm from Stoke and currently I'm working as a general line teacher in Department of School Education, Leh. So today I'm going to teach for class 10th the surface area and volume. The chapter number of your book, the chapter is chapter number 13 of your book. The book is this one. You have to bring this book with you, and we will go through this from tomorrow onwards, or maybe from today. Okay, so this chapter, surface area and volume, this chapter you have studied in class 8th also, 9th also and 10th also. Okay, so in 9th you have recently studied this chapter, surface area and volume, but one shapes is not included in that chapter, that is frustum. All the three-dimensional geometrical shapes you have studied in class 9th. Okay, so in order to start this chapter, before starting I just want to go on the few terms that you have already studied in class 7th also. Okay, so you have studied in class 7th about two-dimensional shapes. Okay, when you look at the two-dimensional shapes, these are square, rectangle, circle. Okay, these are two-dimensional shapes. Okay, why this is two-dimensional? The one which has x-axis and y-axis, we can call it as two-dimensional shapes. Okay, for example, this is a point. It has x-axis and it has y-axis. Okay, a point which has only two axes, we can call that shapes are two-dimensional. For example, this is a square. It has x-axis and y-axis. The x-axis is equal to y-axis, or the opposite sides are, all the four sides are equal. We can call that shape as square. It means that in square all the four sides are equal. So we have written A. What is A? A is nothing, but we didn't measure this length, so we write it as A. We didn't measure this, we have all the length are equal, that's why we have written it as A. Okay, so in two-dimensional shapes, in these three you have to learn two formulas for each. You have to learn two formulas for each. One is the perimeter and other is the area. You have to remember two formulas. When you look at the perimeter, okay, what is the perimeter of square? If someone asks you what is the perimeter of square, or what is the perimeter of a rectangle, or what is the perimeter of a circle, okay, in circle we don't call it as a perimeter. We don't call it as a perimeter, but in circle this perimeter term is another name, that is we call it as circumference. Okay, we call it as circumference. Okay, so what is perimeter? If someone asks you what is perimeter, okay, perimeter is nothing but it is a boundary length. What? It is a boundary length. Okay, so perimeter is the boundary length. Boundary length, if you have purchased, your parents have purchased a rectangular square field or rectangular plot. If your parents have purchased the rectangular plot, then what is its perimeter? Its perimeter is its boundary length. You have to take measurement tape and you have to measure all its boundary. That will be your perimeter. Okay, so what is then area? Area is a land inside that boundary. Okay, that is area. So in case of square, what is its perimeter? We know that square is that shape in which all the four sides are equal. Then what will be its perimeter? We have to add this length, we have to measure this length, we have to measure this length
this length and this length. We have to add all this boundary, that will be our perimeter. Or we can, in short, we can say that perimeter is equal to 4 times of the side. If you know the side of a square, we can multiply it by 4, that will be our perimeter. Okay? And what is area? Area means, if someone asks you or you don't remember this formula for area, just remember that area means length into breadth. If you know the length and breadth, you can multiply both, that will be your area. Okay? Area means length into breadth. Okay? In this case, in the case of square, the length and breadth. Ring nang jang. Ring nang jang इसका multiply चोस्ता ना, वो तो बोलेंगे चीज़ें area. ठीक मेरा? जैसे कि किसी कंपनी ना मैट चिक्यों दो या तिंचे चिक्यों दो, वो तो न्यू वाला कौन किसी पेरेंट्स गुन हटिया छा जाना. आप क्या, आपका पेरेंट्स क्या मेजर करते हैं? घर का लेंथ और ब्रेथ को मेजर कर देते हैं और उनको बोलता है कि लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, हमें इतना बड़ा मैट्रेस मैट चाहिए बिछाने के लिए. तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एरिया. एरिया मींस लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है ना? तो इतना आपको पता चल गया होंगे. स्क्वायर बहुत सिंपल सा है. रेक्टेंगल में क्या होंगे? स्क्वायर में क्या होंगे? सब साइड्स इक्वल होंगे. रेक्टेंगल में क्या होंगे? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे. ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे. ठीक है ना? तो उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल होने के लिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने से क्या हम उसको रेक्टेंगल बोलेंगे? हम उसको दूसरा चीज भी बोल सकते हैं. ठीक है ना? रेक्टेंगल के केस में और क्या होंगे? ये सारे एंगल कितना होंगे? 90 डिग्री होंगे. कितना होंगे? 90 डिग्री. अगर ऐसा शेप्स जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और उनके भी सभी एंगल 90 डिग्री होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल में भी पेरीमीटर क्या होंगे? ये सभी साइड्स को प्लस कर दो, b प्लस एल प्लस बी प्लस एल, तो ये हो गया आपका पेरीमीटर. ठीक है ना? b क्या है ना? ये मेजर कर लो भाई, कितना है ये? 5 सेंटीमीटर. ठीक है ना? इसको सबको मेजर करके प्लस कर दो, उसको हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर. आपको कौन सा चीज याद रखना है? ये फॉर्मूला याद रखना है पेरीमीटर का. ये एरिया का फॉर्मूला. एरिया मींस इक्वल टू साइड का स्क्वायर. ठीक है ना? अब रेक्टेंगल में भी एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. उसमें भी था लेंथ इंटू ब्रेथ. उसमें क्या था? स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ दोनों ए थे. ए इंटू ए स्क्वायर हो गया था. ठीक है ना? अब इसमें क्या हो गया? लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, तभी दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे रख दिया. ठीक है ना? तभी हमने कह दिया लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हो जाएंगे. ठीक है ना? फिर उसके बाद हम सर्कल की ओर जाएंगे. ठीक है ना? अब सर्कल में भी मैंने कहा कि पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस ही होता है. ठीक है ना? सर्कल में भी पेरीमीटर क्या है ना? ये लेंथ को हम क्या कह देंगे? सर्कमफ्रेंस. ठीक है ना? इसको मेजर कर देगा. एक धागा ले लो, उसको सर्कल से ऐसा कर दो, उस धागा को खींच दो और स्केल पे जाके मेजर कर लो. उतना ही वही लेंथ क्या हो जाएंगे? आपका पेरीमीटर. तो सर्कल के केस में आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या? C इज इक्वल टू 2 पाई आर. एक फॉर्मूला को याद रखो, दूसरा का ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. कैसे? आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला याद रखो, C इज इक्वल टू 2 पाई आर. ठीक है ना? अब ये 2 इंटू पाई मीन्स 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर क्या है ना? ये जो रेडियस, ये रेडियस का जो लेंथ है, जैसे कि यहां पर आ रहा है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 क्या हो जाएंगे? आपका सर्कमफ्रेंस. ठीक है ना? ये 4 क्या हो जाएंगे? इसका रेडियस हो जाएंगे. अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएंगे वो आपका क्या आ जाएंगे? सर्कमफ्रेंस. ठीक है ना? उसी तरह एरिया में क्या यार, मैंने कहा आपको एक फॉर्मूला याद रखो, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. ठीक है ना? ये 2 को उठा के पावर में चढ़ा दो, आर के पावर में रख दो, तो एरिया का फॉर्मूला हो गया. ठीक है ना? ओके. ये कैसे बना? 4 टाइम्स ए को एक साइड पता होने से उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पेरीमीटर हो जाएंगे. अगर ये जितना होंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, वो आपका एरिया हो जाएंगे. इसमें क्या हो जाएंगे? पेरीमीटर 2L. ये कैसे बना? वो चीज मैंने नीचे लिखा हुआ है. 2L प्लस 2B को जमा करेंगे और 2 को कॉमन ले लेंगे, L प्लस B बच जाएंगे. तो ये क्या हो जाएंगे? आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल. ओके.
एरिया क्या हो जाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। सर्कल में क्या होंगे, 2 डायमेंशन है ये भी, इसका भी सेंटर होंगे, रेडियस होंगे। हमें रेडियस पता होने से हम सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, रेडियस पता होने से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अभी हमने देखा 2 डायमेंशनल शेप्स। हमने ये 2 डायमेंशनल शेप्स क्यों पढ़ा है, ठीक है ना। फर्स्ट था हमारा स्क्वायर, सेकंड था हमारा क्या, रेक्टेंगल, और थर्ड था हमारा क्या, सर्कल। इनका हमने क्या याद किया था अभी, हमने उनका पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला याद किया। इसमें इसको पेरीमीटर ना बोल के सर्कमफ्रेंस और एरिया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये 2 डायमेंशनल का अगर मैं बोलूंगा स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है बोलेंगे तो 4 टाइम्स ए, एरिया क्या है ना, क्या है बोले तो ए स्क्वायर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या था, ट्वाइस एल प्लस बी, एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। सर्कल का क्या था, मैंने कहा 2 पाई आर को आप याद रखिए, तो आप एरिया को क्या कर देना है, ये लिखना है, और ये 2 को कहां चढ़ा देना है, पावर पे। तो ये हो गया आपका सर्कल का अभी एरिया पता चल गया, ठीक है ना। अब ये था 2 डायमेंशनल, बट ये सब क्या है, ये है 3 डायमेंशनल। These are 3 dimensional. Why they are 3 dimensional? Because if you see at a point, it will have 3 axes: x-axis, y-axis, and z-axis. Okay. So the one at the point, if it has 3 axes, that shapes are we will call as 3 dimensional. अब इस चैप्टर को देखेंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, आपको ये सब का फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये साइड इन शेप्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब ये याद करने का सबका कोई तो रट देते हैं इसको पूरा का पूरा है। मैं तो क्या करता हूं जना, मैंने कैसे याद किया है, मैंने कुछ तो समझ के याद किया और कुछ रट दिया है। मैंने कुछ समझ के याद किया है और कुछ रट दिया है। एक बार याद करोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। ये चैप्टर आपको 10th के बाद कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें भी ये काम आएंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को आपको समझना है, इनका फॉर्मूलेस को आपको समझना है, कैसे बने हैं ये। आप एक बार मेरे तरह से याद करके देखिए, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब हमने देखा स्क्वायर से क्या बनते हैं, क्यूब, रेक्टेंगल से क्यूबॉइड, सर्कल से स्फीयर। ओके, जब स्क्वायर से क्यूब कैसे बनते हैं, मैंने एक छोटा सा आपके लिए बनाने की कोशिश किया, बट इतना अच्छा तो नहीं बना पाया हूं, पर आपको मैं दिखा देता हूं कि क्यूब कैसा है। ऐसे करके ये सारे जो फेस है सभी क्या है, इक्वल है। अगर मैं इसको ऐसा करके जोड़ के ऐसा क्यूब बना दूंगा तो ये क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। ये क्या बन गया, क्यूब बन गया, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप देखेंगे, आप कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तभी ये कौन सा शेप है, 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब ये कैसे बना है, 2 डायमेंशन सबसे जुड़ के बन गया भाई। ये है स्क्वायर, इसको ऐसा करके खोलूंगा तो कितने स्क्वायर है इसमें, 1 2 3 4 5 6। 4 तो साइड में है, एक ऊपर है, एक नीचे है, ठीक है ना। तो 6 स्क्वायर से आपका क्या बन गया, ये क्यूब बन गया, ठीक है ना। अब मैं पूछूंगा तो इस क्यूब का सरफेस एरिया क्या है, हमें ये चीज पता करना है ना। ये सरफेस एरिया चीज क्या है, सरफेस मींस हम कहां बैठे हैं, हम अर्थ के सरफेस पे बैठे हैं। सरफेस मींस ऊपर का पोर्शन जहां पर हम टच कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस, ठीक है ना। जैसे कि आप घर में बैठे होंगे, आपका जो फ्लोर है वो भी क्या है, एक सरफेस। आपका कमरा जो है उसमें कितना सरफेस है, एक ग्राउंड, एक रूफ और 4 वॉल्स, जहां पर आप पेंटर आके पेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो 4 दीवार और छत और नीचे, ये क्या हो गया, 6 साइड हो गया, ठीक है ना। अब जिसका सारे साइड स्क्वायर शेप में होगा, उसका 6 का 6 साइड स्क्वायर शेप में होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। अब इसमें भी मैंने 2 लिखा हुआ है क्यूब में, इसका सरफेस एरिया लेटरल ना टोटल, L फॉर लेटरल सरफेस एरिया, T फॉर टोटल सरफेस एरिया। लेटरल मींस साइड, जो आपके साइड में है वो दीवार को आप क्या कह देंगे, लेटरल सरफेस एरिया।
ठीक है ना। अब इसको दूसरा शेप्स में, जैसे कि दूसरा कोई शेप्स में इसको कर्व सरफेस एरिया भी कह देते हैं, ठीक है ना। लेटरल मीन साइड का वाला जो दीवार होंगे, जहां पर 4 वॉल्स, जहां पर पेंटर पेंट्स, ओके, दैट वॉल इज अ लेटरल सरफेस एरिया। ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएंगे? एक स्क्वायर का एरिया कितना था? एक स्क्वायर का एरिया कितना था? ए स्क्वायर। ऐसा कितना स्क्वायर है? 6। तो ऐसा तो एक क्यूब में तो 6 है, बट इस लेटरल पोर्शन में कितना वो है, कितना स्क्वायर है? 4 स्क्वायर। कितना स्क्वायर है? 4 स्क्वायर। तो तभी हमने 4 टाइम्स एक साइड का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके हमने बोल दिया कि क्या है इसका लेटरल सरफेस एरिया। टोटल में क्या हो जाएंगे? 6 स्क्वायर, 4 वॉल्स, टॉप एंड बॉटम, तो ये हो गया 6। तो तभी टोटल में क्या आ जाएंगे? 6a स्क्वायर। 6 टाइम्स अ एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब वॉल्यूम को हम अभी बाद में करेंगे, पहले इस सरफेस एरिया को समझते हैं ये क्या चीज है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्यूबॉइड देखेंगे। अगर हम क्यूबॉइड को देखेंगे तो क्यूबॉइड कैसा शेप होंगे? इस तरह का शेप होंगे, इस तरह का। ओके, ये भी इसके पास भी 6 साइड्स है। कितना है? इसके पास भी 6 दीवार है, एक, 2 ऊपर, नीचे और 4 दीवार, ठीक है ना। तो इसके पास भी कितना दीवार है? 6 दीवार है। बट इसमें क्या नहीं है, जो अगर मैं एक पॉइंट पे जाऊंगा, एक पॉइंट पे जाऊंगा, इसको 3D में देखूंगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस करके देखूंगा, तो ये भी 3 डायमेंशनल है। बट इसका ये लेंथ और ये लेंथ, ये इक्वल नहीं होंगे। सारे के सारे इक्वल होंगे तो ये क्यूब बन जाएंगे। ये सारे के सारे इक्वल होंगे तो क्यूब बन जाएंगे। अगर 2 इक्वल, 1 अनइक्वल, या तीनों का तीनों अनइक्वल, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्यूबॉइड। क्या कहेंगे? क्यूबॉइड, ठीक है ना। तो क्यूबॉइड का एक कोई चीज को देखूंगा, हाँ भाई ये तो रेक्टेंगल है, इसको भी ऐसा करके खोल के देखूंगा, ये तो इस साइड तो स्क्वायर जैसा है, इसको देखूंगा रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है ना। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर से बना हुआ है, या तो सारे के सारे भी रेक्टेंगल और ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये है कि क्यूबॉइड होने के लिए ये तीनों साइड्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, क्या नहीं होना चाहिए? इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल हो गए तो वो हमारा क्यूब बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्यूब। अगर इक्वल नहीं हुआ, 2 इक्वल, 1 अनइक्वल, या तीनों का तीनों अनइक्वल हो गया, तो हम कहेंगे वो शेप्स क्या बना रहा है? 3 डायमेंशन में क्यूबॉइड बन रहे हैं, ठीक है ना। अब क्यूबॉइड को हम देखेंगे, तो ये कैसे ये बना, ये कैसे बना है, ठीक है ना। इसको जब हम देखेंगे तो इसके हेल्प से हम कर देते हैं, ठीक है ना। अभी हमें कौन सी चीज है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल वाला को मैंने येलो वाला ऐसा करके ले लिया, ठीक है ना। ये लेटरल है, ये तो टोटल में आ जाएंगे, इसको हटा दीजिए। ये 4 दीवार क्या हो जाएंगे? लेटरल, ठीक है ना। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा, तो ये हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये क्या हो जाएंगे? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। या इसको मैं ए, बी और सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, आपका मर्जी है, ठीक है ना। ऐसा करके अगर ये एरिया क्या होगा? ये मैंने कहा है ब्रेथ, ये कहा है लेंथ, और ये कहा है हाइट। मैंने क्या कहा? ये लेंथ, ब्रेथ मीन्स यंग, हाइट मीन्स थॉन, लेंथ मीन्स रिंग, ठीक है ना। अब इसका एरिया क्या होगा? इसके पास लेंथ और हाइट है। ऐसा कितना है मेरे पास? 2 है। ऐसा कितना है? 2 है। एक इस साइड है, इस साइड है, ये दोनों सेम इक्वल होंगे। तो लेंथ और हाइट मेरे पास 2 है। लेंथ और हाइट मेरे पास 2 है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको? 2 लेंथ हाइट प्लस, अब ये वाला चीज क्या है? ये ब्रेथ है और ये हाइट। ब्रेथ और हाइट कितना है मेरे पास? 2 है, प्लस 2 ब्रेथ हाइट। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूंगा तो हमारा ये बन जाएंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया। अब टोटल में क्या हो जाएंगे? ये तो 4, ये तो होंगे 2 लेंथ ब्रेथ, 2 ब्रेथ हाइट प्लस 2 हाइट लेंथ। तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो इसमें टोटल में तो ये 6 का 6 आ जाएंगे। 4 दीवार और छत और नीचे वाला, ये वाला क्या है? लेंथ और ये हाइट।
लेंथ और हाइट दो भी इसमें जोड़ देंगे तो टोटल में आ जाएंगे, ठीक है ना। 2 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, मैंने कहा सर्कल से क्या बना है, स्फीयर। अब इस सर्कल से क्या बना है, स्फीयर, ठीक है ना। अब ये याद करने का तरीका है, ठीक है ना। मैंने तो इस तरह से याद किया है, सर्कल से क्या बना है, स्फीयर। आपको सर्कल का हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब स्फीयर कैसा दिखते हैं, आप बॉल लीजिए, अर्थ तो स्फेरिकल तो पूरा है नहीं, बट ये जो है ये क्या है, एक प्रॉपर स्फीयर है। ये क्या है, बॉल, ये क्या है, एक स्फीयर है। अब ये स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें टोटल, इसमें कोई लेटरल लूटरल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कोई, अगर मैं इस स्फीयर को हेमिस्फीयर कर दूंगा, आधा स्फीयर कर दूंगा, तब इसमें इसको फिर हम डिवाइड कर देंगे, इसका सरफेस एरिया को, इसको कर्व बोल देंगे, इसको टोटल में ये दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। बट इसमें टोटल ये पूरा सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, या टोटल ना बोलने से भी चल जाएंगे। इसका सरफेस एरिया क्या है बोलेंगे तो इसका क्या हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया था, सर्कल का। किसका था, सर्कल का। तो 4 से मैं सर्कल को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, स्फीयर का सरफेस एरिया बन जाएगा। अब इसको याद करने का एक तरीका है, ऐसा करके एक सर्कल है, 4 सर्कल से क्या बन गया हमारा, स्फीयर। 4 सर्कल को आप जोड़ दोगे, अब एक इस वायर शेप में सर्कल को लेंगे और 4 वायर सर्कल शेप में उसको जोड़ देंगे तो एक बॉल जैसा बन जाएंगे ना, बॉल जैसा बन जाएंगे ना। तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या हो जाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ठीक है ना। ओके, तो इनका अब वॉल्यूम भी कर देते हैं। अभी और भी शेप्स बचे हैं। नेक्स्ट मैं 4th में करूंगा आपको कौन सा, नेक्स्ट 4th में करूंगा आपको सिलेंडर, सिलेंडर। फिर उसके बाद 5th करूंगा मैं क्या, सिलेंडर के बाद कोन, सिलेंडर के बाद मैं करूंगा 4th में मैं करूंगा हेमिस्फीयर। क्या करूंगा, हेमिस्फीयर। 5th में करूंगा सिलेंडर, 6th में करूंगा कोन और 7 में करूंगा फ्रस्टम, ठीक है ना। यहां तक तो आपने क्लास 9 में पढ़ा है, आपका बुक में भी है, आपके बुक में भी है कोन तक। बट यहां पर एक क्वेश्चन आ गया फ्रस्टम, फ्रस्टम। ओके, तो अभी फिलहाल मैं इनका ही वॉल्यूम कैसे बनाया है वो आपको समझा देंगे, ठीक है ना। अभी आपको पता चल गया इनका सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने कहा था आपको क्या, एरिया मींस लेंथ इनटू ब्रेथ, वॉल्यूम मींस आप याद करना है क्या, एरिया इनटू हाइट। एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम मिल जाएंगे। अगर आपका कमरा है उसका फ्लोर का एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम। वो एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, और एरिया था लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट। तो वॉल्यूम मींस क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम क्यूब का देखेंगे, अगर हम क्यूब का वॉल्यूम देखेंगे तो इसका लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, हाइट भी ए है। ए इंटू ए इज ए क्यूब, ए इंटू ए इज ए क्यूब। ये सबका पावर कितना है, 1। सेम बेस पावर एडिड, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन द सेम बेस पावर एडिड, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। तो ये क्या बन गया, ए क्यूब। इस तरह से ये वॉल्यूम इनका फॉर्मूला बना है। अगर हम क्यूबॉइड की तरफ जाएंगे, क्यूबॉइड में क्या होंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये सभी का सभी नॉट इक्वल है, तभी मैं क्या लिख दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। या तो मैं वॉल्यूम को क्या कह सकता हूं, एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब स्फीयर, अब स्फीयर का मैंने आपको कहा था कि इसका जो सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स ऑफ सर्कल है। 4 सर्कल को एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्फीयर का एरिया बन जाएंगे, ठीक है ना। अगर इसका वॉल्यूम कैसे बनाना है, ये सेम एक चीज याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। क्या करना है आपको, नीचे 3 लिख देना है और ये 2 को 3 बना देना है, बस सिंपल सा चीज। अब अगर आपको फॉर्मूला याद होंगे, फॉर्मूला भी लिख देंगे तो आपको 1 मार्क्स या आधा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला तो इतना इजी है याद करना है। ओके, अभी मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, तो बाकी ये जो और भी 4 3D शेप्स है इसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। थैंक यू।